یہ بچہ بول نہیں سکتا تھا، انہوں نے قرآن کی خدمت شروع کی، مقدس اوراق کو کلیکٹ کرنا شروع کیا، اس کے بعد اس کی زبان میں کتنی کلیئرٹی آئی ہے وہ ہم اسی سے بات کریں گے۔ اللہ نے توفیق دی، اللہ نے سر مجھے چنا اس کام کے لیے۔ میں سر کہتا ہوں کہ میں زندگی کا سر پتہ نہیں ہے، ایک گھڑی پل کا نہیں پتہ۔ میں کہتا ہوں یہ میرا سلسلہ میرے بچے چلاتے رہے، میرے تینوں بیٹے یہ سلسلہ چلائے، کیونکہ یہ دین کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ جس نے اس کو حاصل کر لیا سب کچھ پا لیا اس نے۔ درود شریف لکھا ہوا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا نام ہے، اور وہ فلیکس کس حالت میں تھی میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اس کو کاٹا ہے اور اس کو یہاں پر محفوظ کر لیا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں جو آپ قرآن مجید دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک بچی کو جہیز میں دیا گیا تھا، اور اس بچی کا تمام جہیز کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا، لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید اس کے ایک حرف کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ یہ ہیں محمد بوٹا صاحب، جو پچھلے 23 سال سے قرآن شریف کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنے بندوں کو بھی اس کام کے لیے مختص کیا ہے۔ یہ گلیوں کوچوں بازاروں میں جاتے ہیں اور شہید ہو جانے والے قرآن شریف کے اوراق احادیث کی کتابوں کو اٹھاتے ہیں، اور مختلف گلیوں میں انہوں نے سینکڑوں ٹین کے ڈبے لگائے ہوئے ہیں جس کے اندر ان تمام اوراق کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ اس چھوٹی سی بائک پر پورے شہر کا گریا نگری چکر لگاتے ہیں۔ صبح فجر کے وقت اٹھتے ہیں اور 10-11 بجے تک یہ کام چلتا رہتا ہے۔ اس وقت جس جگہ پر میں موجود ہوں یہ کجا پیر قبرستان ہے۔ یہاں پر ایک بڑا 10 فٹ گہرا کنواں بنایا گیا ہے۔ تمام ٹین کے ڈبوں میں سے ان تمام مقدس اوراق کو اٹھا کر اس کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور جب یہ کنواں منہ تک بھر جاتا ہے تو قرآن بورڈ کے ممبرز آتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کو پھر سنبھالتے ہیں، جو بھی ایک ان کا سسٹم ہے۔ یہ ان کا بیٹا ہے ہارون، جس کی عمر 27 سال ہے۔ یہ 4 سال کا ہوا تو ان کو پتا چلا کہ یہ بول نہیں سکتا۔ یہ ایک بزرگ کے پاس گئے، انہوں نے ان کو حکم دیا کہ آپ جتنے بھی مقدس اوراق ہیں، احادیث کی کتابیں ہیں اور قرآن شریف کے وہ اوراق جو شہید ہو جاتے ہیں اور ان کو موضوع مقام پر نہیں رکھا جاتا، آپ ان کو کلیکٹ کرنا شروع کر دیں۔ اللہ خیر کرے گا، اللہ کرم کرے گا، ایک وقت آئے گا آپ کا بیٹا بولنے لگ جائے گا۔ آج ان کا بیٹا ہارون ایم فل کر رہا ہے، یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، بول سکتا ہے لیکن زبان میں تھوڑی لکنت ہے۔ یہ جیسے 23 سال سے کام کرتے گئے ویسے اس کی زبان کے لفظوں میں کلیئرٹی آتی گئی۔ بوٹا صاحب، آپ نے کوئی ادارہ نہیں بنایا، اپنی ذات میں ادارہ ہے۔ صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں اور قرآن کی خدمت کرنے لگتے ہیں؟ فجر کی نماز پڑھ کے نکل جاتا ہوں، میرے بچے ساتھ ہوتے ہیں، میں گلی محلوں سے اکٹھے کر کے پھر ادھر آ کے جمع کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میری اور 2 لوکیشنیں، ادھر بھی میں جاتا ہوں۔ میں نے یہی رب سے دعا کی تھی، اے میرے رب کریم، یہ میرا بڑا بیٹا ہے اور یہ سنتا بولتا نہیں ہے۔ میں بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا، ڈاکٹروں نے کہا یہ نہیں سنے گا۔ میں سر بڑا رویا، میں نے اللہ سے دعا کی، پھر مجھے کوئی خدا ترس آدمی ملا، اس نے مجھے اس کام پہ لگایا۔ بچہ بولتا یا نہ بولتا، میری یہ خوش نصیبی تھی کہ مجھے اللہ نے جس کام کے لیے چن لیا، میرے لیے یہ سب سے بڑا کام ہے۔ جب آپ نے شروع کیا اس کام کو، بیٹا بولتا نہیں تھا اور وہ جو خدا ترس آدمی تھا اس نے آپ کو اس کام پر لگایا، کس طریقے سے اپنے معاملات آپ نے سٹارٹ کیے؟ شروع سے تو مجھے دشواریاں تھیں، جب میں جاتا لوگ باتیں کرتے تھے، یہ کاغذ کٹھے کرتا ہے، یہ بیچتا ہے، ایسی باتیں میں نے لوگوں سے سنی ہیں، مگر میں نے بولا میں تو اپنے اللہ کو راضی کر رہا ہوں، میں بندوں کو نہیں راضی کر سکتا۔ واہ، اور کہاں سے آپ یہ قرآن کے جو حروف ہیں کلیکٹ کرتے ہیں؟ میں سر بڑی لوکیشنوں سے اکٹھے کیا، مگر میں اس کو ریپیٹ نہیں کر سکتا، میرا دل دکھتا ہے، پاؤں سے لے کے سر تک میں کانپ اٹھتا ہوں کہ یا اللہ پاک، یہ تمہاری کتاب کے ساتھ ایسے بھی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سر مجھے معاف کرے، میں کہتا ہوں میرے سے کوئی قطعی نہ ہو جائے، قرآن پاک میں اکٹھے کرتا ہوں نا، مجھ سے کوئی قطعی نہ ہو جائے۔ تو باپ بیٹا لاہور کی کن سڑکوں، گلیوں، محلوں، کوچوں میں جاتا ہے اور ان تمام اوراق کو کلیکٹ کرتا ہے؟ میں سر ہر بنسپورہ مین کے انٹرچینج سے نکلتا ہوں، ٹھوکر تک جاتا ہوں، پھر گلی محلے جتنے بھی لاہور کے آتی ہے سارے میں نے علاقے ڈیوائڈ کیے ہیں۔ یہ ہار روڈ ہے، یہ سارے علاقے میں کور کرتا، داتا صاحب کا علاقہ، شالمی کے علاقے، یہ سارے علاقے میں نے ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں۔
फिर मैं अपने वो हिसाब से सारे जाता हूँ, मेरा बेटा भी जाता है और मेरा माशाल्लाह दूसरा बेटा भी जाता है। आप खुद भी काम कर रहे हैं और अपनी औलाद को भी ये कुरान शरीफ और उरा कलेक्ट करने के लिए आपने सादतमंद किया, समझा, या अल्लाह ने तौफीक दी? ये सर अल्लाह ने तौफीक दी, अल्लाह ने सर मुझे चुना है इस काम के लिए। मैं सर कहता हूँ कि मैं ज़िंदगी का सर पता नहीं है, एक घड़ी पल का नहीं पता। मैं कहता हूँ ये मेरा सिलसिला मेरे बच्चे चलाते रहे, मेरे तीनों बेटे ये सिलसिला चलाए, क्योंकि ये दीन का बहुत बड़ा खजाना है। जिसने इसको हासिल कर लिया सब कुछ पा लिया उसने। जब आप मोटर बाइक चलाते हैं ठोकर न्याज बेग से हरबंसपुरा तक गली गली, कूचा कूचा, गरिया गरिया, नगरी नगरी जाते हैं, तो इसमें पेट्रोल भी डलता होगा, तो वो भी एक्सपेंस खुद बर्दाश्त करते हैं? हाँ जी सर, मेरा अपना दिमाग कंट्रोल का काम है, अल्लाह का शुक्र है, मेरे सिलसिले जा रही हैं, अल्लाह की ज़ात चला रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्चा बोल नहीं सकता था, इन्होंने कुरान की खिदमत शुरू की, मुकद्दस औराक को कलेक्ट करना शुरू किया। उसके बाद इसकी ज़ुबान में कितनी क्लैरिटी आई है वो हम इसी से बात करेंगे। मुझे बताइएगा भाई, आप भी अब्बू के साथ ही जाते हैं? हाँ, मैं अब्बू के साथ जाते हूँ। मैं ना जब मैं छोटा सा मैं बोल नहीं सकता था, फिर मैंने अल्लाह की किस्मत दी है, मैंने वाला साहब के मैं कुरान पाक मुकद्दस उठा के ने अल्लाह ताला मुझे किस्मत दी है। मैं आयशा से मेरे पापा ने स्पीच सीखने आयशा से बोले, फिर अल्लाह का शुक्र मैंने ज़बान खुल गया, फिर कान भी सुनने के। फिर मैंने आगे पढ़ना, मैं यूनिवर्सिटी पढ़े, दाखिला के बाद यूनिवर्सिटी में 4 साल BFA किया तशरीह से। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यूनिवर्सिटी का उसमें आगे पढ़ना MPhil करा मुझसे। जी, ये कह रहे हैं मैंने पहले BSc की और अब MPhil कर रहा हूँ और कान में एक आला भी लगा हुआ है, और ये बोल नहीं सकते थे, लेकिन इनकी कुछ ना कुछ जो लैंग्वेज है कुछ 70% 80% समझ आ रही है। तो सर अल्लाह के इस मौज़े को कैसा देखा आपने? सुभान अल्लाह सर, ये किस्मत वालों के साथ ऐसे होता है, मैं बड़ा खुश नसीब हूँ। आप सुबह यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी जाने से पहले ये तमाम काम सर अंजाम देते हैं, तो दिन कैसा गुजरता है? मैं सुबह यूनिवर्सिटी जाते हैं, मेरे अब्बू कहते थे हर उनका यूनिवर्सिटी जाकर पढ़ गए। मेरे पापा उससे मेरे भाई छोटा भाई सुबह फजर नमाज़ पढ़ के कुरान पाक मुकद्दर करते। फिर मैंने उसमें पापा में वीडियो देख के कुरान पाक उसमें सारा मुकद्दर, मुझे बड़ी खुशी हो गई। बच्चे भी नेक सीरत हैं जिन्होंने वालिद के साथ 3 बाइक्स रखी हुई हैं, और ये पूरा का पूरा ख़ानदान लाहौर की मुख्तलिफ गलियों से, कूचों से, बाज़ारों से मुकद्दस औराक को कलेक्ट करता है। कोई पैगाम देना चाहें तो दे सकते हैं आप। घरों में आप लोगों ने रजिस्ट्रियों को, जेवरों को और अपने बच्चों यूनिवर्सिटी की जो डिग्री हैं सर, इन चीज़ों को, ये सर सारी चीज़ों को आप लोगों ने संभाल के रखा हुआ है। आपने लॉकरों में रखते हैं, आप सर दराजों में रखती हैं, लॉक लगा के रखती हैं, कहीं हमारी डिग्री ख़राब ना हो जाए। खुदा के वास्ते ये सबसे बड़ी डिग्री है जो हमारी पहचान है मुसलमान की। घर में छोटे छोटे बॉक्स बनाएं, उनमें कुरान पाक के शहीद वराक, उसके अलावा जो अरबी कागज़ हैं, कैलेंडर हैं, ये चीज़ें उसमें रखें और मुझे फ़ोन करें। जहाँ भी होगा मैं जाके अपनी बहनों से, अपने भाइयों से ये खुद जाके कलेक्ट करूँगा। बूटा साहब मुख्तलिफ जगहों से मुकद्दस औराक को कलेक्ट करके इस पूरे कुएं में भरते हैं, और ये जो एक फ्लैक्स आप देख रहे हैं, ये इसकी क्या कहानी है बूटा साहब? मिलाद शरीफ आता है तो लोग ये फ्लैक्सें बनाती हैं तो रोडों पे लगा देती हैं। तो सर रोडों पे जब लगाती हैं तो इसकी जब वो टाइम ख़त्म होता है ये सारी नीचे गिर जाती है, लोगों के पाँव में भी आ जाती है। ये जिस तरीके से गुंबद खजरा बना है, बैतुल्ला काबा शरीफ है, हमें ये चीज़ें हैं जो हमें जान से नूरुस समावाति वल अर्द आयत लिखी है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल रहीम लिखा हुआ है। ये चीज़ें देखें ना आप, मैं कहता हूँ कि ये चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। हमने फ्लैक्स काट के बाकी फेंक दी है। जो हमारी मेन मकसद है हमारा अपने अल्लाह को राज़ी करने का, अल्लाह का नाम चाहे अखबार पे लिखा है, जहाँ पे लिखा है, हम उसकी कदर करेंगे और हर इंसान को फ़र्ज़ बनता है वो करें। दुरूद शरीफ लिखा हुआ है और अल्लाह और उसके रसूल का नाम है, और वो फ्लैक्स किस हालत में थी मैं उसको बयान नहीं कर सकता। इन्होंने उसको काटा है और इसको यहाँ पर महफूज कर लिया है। अब आपको उस कुरान महल का भी विज़िट करवाते हैं जहाँ पर छोटे साइज़ के, बड़े साइज़ के, दरमियाने साइज़ के वो तमाम कुरान जिनको कलेक्ट किया गया और उनको रिन्यू किया गया और एक बड़ी खूबसूरत और नफीस फॉर्म में उनको संभालने की कोशिश की गई है। आइए हमारे साथ। बूटा साहब पूरे लाहौर के गली कूचों मोहल्लों से जो मुकद्दस औराक कलेक्ट करते हैं
और कलेक्ट करने के बाद इस छोटे से कमरे में, जिसको इन्होंने कुरान महल का नाम दिया है, वहाँ पर रख देते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये जो बिल्कुल सामने बड़े बॉक्स में कुरान शरीफ पड़ा हुआ है, ये 150 साल पुराना है। इसी तरीके से बड़ा, छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और साइज में छोटे छोटे होते हुए ये तमाम कुरान मजीद एक तरतीब के साथ लगे हैं, जिनको रीन्यू किया गया है। आप सोच रहे होंगे कि हम इस तरीके से क्यों खड़े हैं, तो पीछे क्योंकि अल्लाह की मुकद्दस किताब पढ़ी है, तो हम नहीं चाहते कि इसको पीठ हो। ये मेरे हाथ में जो आप कुरान मजीद देख सकते हैं, ये एक बच्ची को जहेज़ में दिया गया था और उस बच्ची का तमाम जहेज़ का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। लेकिन अल्लाह की कुदरत ये है कि ये कुरान मजीद, इसके एक हर्फ को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है। बूटा साहब, ये तो छोटा सा कमरा है, आप इसको महल क्यों कहते हैं? सर, ये हमारे मुसलमानों के लिए ये महल है। कुरान पाक, अगर एक कुरान पाक भी पढ़ा होगा ना किसी कमरे में, वो हमारे लिए महल से कम नहीं है। ये तो छोटे कुरान हैं, ये भी कैमरे की स्क्रीन पर लोगों को दिखाएं, ये कौन कौन से कुरान हैं और कौन कौन से साइजेस में यहाँ पर जो हैं वो रखे गए हैं। ये कुरान मल के मजमूए में ये इस वक्त ये सबसे छोटा कुरान पाक है। तो बूटा साहब, इसको पढ़ते कैसे हैं? ये सर मैग्नीफाइड ग्लास होता है, वो लगा के पढ़ते हैं। और ये वाला जो कुरान शरीफ है, ये 150 साल पुराना है। 150 साल पुराना कुरान पाक है। 150 साल, 100 साल, 150 साल, ये सारे माशाल्लाह नियाब कुरान पाक है। इस कुरान महल को एक वर्कशॉप का भी नाम दिया गया है, जिसको कुरान वर्कशॉप कहा जाता है। आपको वो भी दिखाते हैं कि तमाम शहीद हो जाने वाले उराक को किस तरीके से दोबारा संभाला जाता है या प्रिजर्व किया जाता है। आइए हमारे साथ। कुरान महल की उस जगह पर मैं मौजूद हूँ जिसको इन लोगों ने कुरान वर्कशॉप का नाम दिया है। वो तमाम कुरान पाक के मुकद्दस औराक जो शहीद हो जाते हैं या अपनी असल फॉर्म में नहीं होते, उनको दोबारा उसी फॉर्म में प्रिजर्व किया जाता है, उसी फॉर्म में बहाल किया जाता है। और यहाँ पर मुख्तलिफ लोग हैं जो इनके साथ ये काम करते हैं, और कई कुरान शरीफ जो हैं ये अब तक रीन्यू करवा कर मदारिस और मसाजिद में बतौर गिफ्ट दे चुके हैं। मुझे बताइएगा, यहाँ पर किस तरीके से काम करते हैं? जो शहीद कुरान पाक होते हैं, फिर उनकी हमने जल्दबंदी होती है। जो पेज शहीद होती है उनको ये नए पेज लगाते हैं। ये पेज जो होते हैं ये कंप्यूटर से डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करके फिर इनको इसके अंदर एडजस्ट करते हैं। फिर इसके ऊपर फिर बाद में कलर होगा, कलर करके जिल्दबंदी करके ये नया कुरान पाक बन जाएगा। सर, आप इस्लाम के और पाकिस्तान के अजीम हीरो हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको सल्यूट करूँ। आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे नाज़रीन से, तो कह सकते हैं। बस सर, मैं यही पैगाम दूंगा कि हर इलाके में नौजवान उठे और ये काम को अपनाए। अगर ये बूटा का रहा तो उसमें इब्राहीम भी करे, उसमें इस्माइल भी करे, उसमें सादक भी करे, उसमें अब्बास भी करे। जितने नाम है अल्लाह ताला के, सब नामों वाले ये काम करें। इस काम को अपना ले, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। क्या खूबसूरत पैगाम है। और मुझ समेत हम सब का ये फ़र्ज़ है कि जो काम बूटे के करने का है वो मुझे भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इस काम को करने की तौफीक दे और बूटा साहब को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। और जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, इस काम को देखने के बाद और आपको दिखाने के बाद आज मैं भी एक इत्मीनान क़ल्ब महसूस कर रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।